اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم respected students. Today we are going to end the topic of framing of charge. As in the earlier lecture, I also told you people that the next lecture regarding the framing of charge would be our last lecture, and after it, inshallah, we will start the topic of evidence. Today, framing of charge, we are going to end, and I decided to conclude this topic in a very precise manner by giving different illustrations. You people know well the definition of charge, as I have already given in the previous lectures. What is charge? Charge is the precise accusation against the accused person. What does mean the framing of charge? It is a procedure that is adopted by the criminal court. Its stage is before the recording of evidence. Similarly, when police report under section 173 CRPC is submitted before the criminal court, and after it the court supplies the copies to the accused person, under section 241A capital, in case of trial by the magistrate, and in case of session trial, different procedure is adopted, different section mainly. What are the necessary things that court has to keep in mind during the process of framing of charge? To understand properly, for today's lecture, I have different references of case laws, judgments that were delivered by the Honorable Superior Courts of Pakistan. You are seeing well the different judgments. The main judgment whose reference I also want to give to you people. The judgment is 2005 SCMR, page is 364. In this judgment, the Honorable Supreme Court of Pakistan narrated the most important significance of the charge. In it, it has been given that when a person is convicted of an offence and the appellate court is of the view that he has been misled in his defense by the absence of a charge
or by an error in the charge. Similarly, it has also been given that omission in a charge cannot be regarded as material unless in terms of section 225 it is shown by the accused that he has in fact been misled by such omissions or that there has been a failure of justice as a result of such omissions. After that, in this judgment, the reference has been given of section 237. According to this section, section 237 enables the court to convict a person of an offence which is disclosed in the evidence and for which he might have been charged. If we see the series of different sections that are relevant to the charge, section portion starts from section 221 to section 240. These are different provisions of the Code of Civil Procedure that guide the Honorable Court while the framing of charge. These are very mandatory directions that the court have to follow these provisions. As in the initial lectures regarding this topic, I have also told you people that it is the duty of the court to narrate in the charge sheet the exact date, time, place, the name of the offence, the manner in which the accused person committed the offence. These are very mandatory and basic requirements for a court. In another case law cited as 2005 SCMR page 364, I have also told you about this case law earlier that the Honorable Supreme Court of Pakistan held in this case law that the whole object of framing of charge is to enable the defense to concentrate its attention on the case that he has to meet, and if the charge is framed in such a vague manner that the necessary ingredients of the offences with which the accused is convicted is not brought out in the charge, then the charge is defected. Next, the Honorable Apex Court also held that, in other words, it can be said that the main object of framing of charge is to ensure that the accused had sufficient notice of the nature of accusation with which he was charged, and secondly, to make the court concerned conscious regarding the real points in issue so that evidence could be confined to such points. This is a very basic, comprehensive, and important judgment of the Honorable Supreme Court of पाकिस्तान. अब इसको मैं थोड़ा सा तफसील के साथ बयान करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ. अब जैसे आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि क्रिमिनल लॉ है हमारा, पाकिस्तान का है,
और क्रिमिनल लॉज तकरीबन पूरी दुनिया में ही हैं। क्रिमिनल लॉ का मकसद है मुलजिम को सज़ा देना जिसने जुर्म सरज़द किया है। मुआशरे में अमन और सुकून कायम करने के लिए लॉज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑफेंस क्या है? जैसा कि डेफिनेशन में शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि कोई भी एक्ट या ओमिशन किसी भी इंसान का जो कानून ने बयान कर दिया, अगर मना किया गया है, इसके बावजूद भी कोई फ़र्द कोई जुर्म करता है तो उसका ये फेल जुर्म कहलाता है, जिसे हम ऑफेंस कहते हैं। उसके लिए हमारा पाकिस्तान का एक प्रोसीजर है CRPC। जब जुर्म हो गया, जो एग्रीव्ड पर्सन है, कंप्लेनेंट आप कह सकते हैं, या कंप्लेनेंट कोई भी शख्स हो सकता है, वो पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त देता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए। FIR रजिस्टर हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबमिट हो गई कोर्ट में। उसके बाद जैसे शुरू में आप लोगों को प्रोसीजर बताया कि यूँ ही अदालत में पुलिस रिपोर्ट आती है, हमारा पाकिस्तान में जो प्रोसीजर है इलाका मजिस्ट्रेट के पास आती है अंडर सेक्शन 190। अगर ट्रायल उसने खुद करना है तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग भी वो खुद करेगा। अगर ये केस ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है तो इलाका मजिस्ट्रेट उस केस को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास भिजवा देगा। अब इसका जैसे आप लोगों को पहले बताया कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या है कि मुलजिम के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि इसे सज़ा दी जाए। अदालत ने ट्रायल करने के लिए एक तरीक़ाकार अख्तियार करना है। उस तरीक़ाकार में बुनियादी स्टेप इंतहाई अहम नोयत का है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब चार्ज जैसे आपको बताया इल्ज़ाम है, अब ये फ्रेम कैसे होगा, इसकी बाबत सेक्शन 221 से लेकर 240 तक बड़ा तफसीली तरीक़ाकार बता दिया गया है कि अदालत ने इस तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखना है। अब इसका एक स्पेसिफिक फार्मेट होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का, जो कि शुरू के जो लेक्चर्स वगैरह थे उनमें आप लोगों को ये फार्मेट बता चुके हैं। अब अदालत ने मुकम्मल तफसील के साथ मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो लिखने हैं। किस बाबत? जुर्म की, कि उसने कहाँ जुर्म किया, किस चीज़ के साथ जुर्म का इनेकाद किया, इर्तकाब किया, डेट क्या थी, प्लेस कौन सी थी और कैसे किया, और जुर्म का नाम वगैरह इसमें शामिल है। अब ये सेक्शंस की सीरीज़ है। अब देखें ना, इसमें जो आप लोगों को बताया कि इंतहाई अहम केस लाए ये, और उसके बाद हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी जब कोई फ़ैसला किया तो इस केस ला को मद्देनज़र रख कर किया। अब सरेदस्त एक बात याद आ गई, अक्सर आप लोगों का ये होता है इशू कि सर नोट्स वगैरह हैं या सवाल कैसे तैयार करें। अब आज का जो लेक्चर है ना फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का कंक्लूडिंग, इसको अगर आप तसल्ली से गौर से सुन लें और इन जजमेंट्स को जो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा, इसी से आपको बेहतरीन मटेरियल मिल जाएगा। आपने बेयर एक्ट देखना है, रेलिवेंट सेक्शन अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने यही चीज़ें लिख देनी हैं जो इन जजमेंट्स में बताई गई हैं। इससे आप लोगों का पेपर तैयार हो जाएगा। और ये इनकी आप वर्डिंग देखें, इतने बाकमाल खूबसूरती से अल्फाज लिखे गए हैं, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से बयान किया गया है। और इसके अलावा जो केस ला दूसरा है, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, इसका मैंने
पहले आप लोगों को लास्ट लेक्चर में रेफरेंस दिया था। आज इसका मकसद यही था कि आप लोगों का मटेरियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाए। अब ये कुछ और भी हमारे केस लॉज थे जिनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका भी हम रेफरेंस देंगे। अब ये केस लॉ है हमारा ऑनरेबल शरीयत एपीलेट कोड का, जिसमें ये रिपोर्टेड है 2006 SCMR पेज है 1170। अब जो डिफरेंट केस लॉज हैं, इसका मकसद क्या है या आप लोगों को इनका हवाला देना ज़रूरी क्यों है। एक है थ्योरेटिकल चीज़, थ्योरी जो हमने पढ़ ली, सेक्शन का रेफरेंस आपको बता दिया 221 से लेकर 240 तक। अब उसके बाद ये चीज़ें अप्लाई कैसे होती हैं, अप्लाइड, ये हमें बेहतर रहनुमाई मुहैया करती हैं जजमेंट्स ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की, जो कि बाइंडिंग हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर। अब इसमें आप देखें, ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है स्लाइड, इसमें वाज़े तौर पर है। अब ये हदूद के केसेस हैं जिना के, इसमें सेक्शंस हैं 11, 10, सब क्लास 3, 16 और ये हैं। अब इसमें आपको मैं ब्रीफ फैक्ट्स बता दूं कि जब ट्रायल शुरू हुआ तो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट से ये गलती हुई कि मुलजिम को सज़ा उस जुर्म में कर दी जिसका चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। तो इसके फिर ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट का एक अपना अख्तियार है, मुलजमान को बरी भी कर सकते हैं अगर हालात व वाक़यात ऐसे हैं, या केस को रिमांड भी किया जा सकता है और ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स करती भी हैं। उसके अलावा ये भी हमारे पास ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट का है फैसला, और ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इसको 2011 PCR LJ पेज 617। इसमें वही जो मैं आप लोगों को प्रोसीजर बता रहा था कि रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट हो जाती है, जिसे हम रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 कहते हैं, चालान कहते हैं, उसको देखकर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है कि एलिगेशंस कौन कौन सी हैं, मुलजिम ने किस किस जुर्म का इनेकाद किया है। उसके बाद जैसे आप लोगों को बताया कि चार्ज फ्रेम करके एविडेंस स्टेज पे केस आ जाता है। अब लास्ट में आप लोगों को असूल बताने थे जो इंतहाई अहम है। अब बेसिक बुनियादी चीज़ आप लोगों ने इस लेक्चर में ये देखना है, गौर करना है कि कौन सी मेन असल चीज़ है जिसकी बिना पर चार्ज को ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट अहमियत देती है। अब किस तरह की अहमियत, कैसे अहमियत देती है, अब वही बुनियादी इसका फर्स्ट असूल आप देख लें। अगर अक्यूज़्ड प्रेजुडिस हुआ है, प्रेजुडिस से मुराद ये है कि अक्यूज़्ड को समझ नहीं आई कि उसके ख़िलाफ़ एलिगेशंस कौन सी हैं और चार्ज में किस जुर्म का ज़िक्र कर दिया गया है। अगर अक्यूज़्ड वाकई प्रेजुडिस हो गया है तो फिर ये रिमांड हो जाता है केस। अगर अक्यूज़्ड प्रेजुडिस नहीं हुआ तो फिर उसका एतराज़ की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। अब ये जैसे आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई थी, उसमें भी ये चीज़ बयान कर दी गई है कि अगर अक्यूज़्ड वाकई प्रेजुडिस हुआ है, उसके अपने हालात व वाक़यात हैं हर केस के। अगर प्रेजुडिस हो गया फिर तो एक्विट भी हो सकता है अक्यूज़, लेकिन वो एविडेंस देखनी पड़ती है कि विटनेसेस ने क्या बयान किया है। अगर प्रेजुडिस नहीं हुआ तो उसके ऑब्जेक्शंस को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अब पहला असूल यही आप लोगों को बताया कि अक्यूज़्ड प्रेजुडिस हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा असूल आप लोगों को बता दिया कि चार्ज फ्रेम हो गया, डिफरेंट ऑफेंसेस ऑनरेबल कोर्ट ने मेंशन कर दिए। अब जब जजमेंट
प्रोनाउंस की जाती है। अगर चार्ज फ्रेम है उन ऑफेंसेस का, उसमें तो सज़ा हो गई, अंडरस्टूड सी बात है। अगर कोई छोटा जुर्म बनता है लेकिन रेलिवेंट, उसमें भी सज़ा हो सकती है। अब तीसरी अहम चीज़ कि अगर ऑनरेबल ट्रायल कोड ने किसी बड़े जुर्म में सज़ा कर दी है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ऑफेंस है सपोज 337A3, कोई सर की हेड वगैरह की इंजरी है, लेकिन ऑनरेबल ट्रायल कोड ने 337A5 में सज़ा कर दी है या 324 में, तो ये गलत है। वो क्यों, कैसे? वो इस तरह के 324 चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ा जुर्म है, इसकी सज़ा ज़्यादा है, इसलिए ऑनरेबल ट्रायल कोड इसमें सज़ा नहीं कर सकती। बाकी आप लोगों को जेंडर ऑफ चार्जेस भी लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि किन किन जराइम का इकट्ठा ट्रायल हो सकता है। ये एक बेसिक चीज़ है ट्रायल की, चार्ज फ्रेम करना। उसके बाद एविडेंस स्टेज आती है। बेसिक स्टोन इसे इसलिए कहा गया है, बुनियादी पत्थर, कि अगर चार्ज गलत फ्रेम हो गया तो फिर पूरा ट्रायल विशिएट हो जाता है, पार्टीज़ का, दोनों साइड का नुकसान होता है। अल्टीमेटली 2 साल, 5 साल, 7 साल के बाद केस रिमांड होकर वापस आ जाता है। इसलिए आप लोगों को इसके बारे में आज स्पेशल लेक्चर रखा था, यही मेन चीज़ें बताने के लिए कि चार्ज फ्रेम करते वक्त अदालत की ज़िम्मेदारी है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है। एक एक चीज़ को तसल्ली से, गौर से, बारीक बीनी से देखा जाता है, क्योंकि उसी की बेस पर एविडेंस आनी है। अगर चार्ज दुरुस्त फ्रेम नहीं हुआ, बामुताबिक कानून नहीं हुआ, जैसे आप लोगों को बताया कि हर जुर्म को अलग-अलग लिखा जाता है, ऑफेंसेस को मुख्तलिफ हेड्स बनते हैं, इकट्ठे नहीं लिखा जाता। अगर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट से गलती हुई है, तमाम ऑफेंसेस को इकट्ठा कर दिया है या इकट्ठे लिख दिया गया है, तो ये मुनासिब नहीं है, बड़ी गलती समझी जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम अब एविडेंस पर शुरू होंगे। क्रिमिनल ट्रायल में एविडेंस प्रोसीजर क्या होता है, क्या इसका तरीक़ाकार है, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हम कानून शहादत आर्डर को भी देखेंगे, लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स का भी रेफरेंस देंगे, फिर CRPC के मुताबिक इसकी तरतीब क्या है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।